हर जगह पर घूम के लोगों को ट्रेनिंग देगी। ऐसी हमारी प्लान है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और आज सन जेबीएस स्कूल भी हमारे से जुड़ा है। दिस इज अ वेरी लकी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कूल हैज joined for the workshop. So now Ratnesh, you can go for national anthem. Yes, just a minute. Yes. तो आपको अभी नेशनल एंथम होगा, तो बच्चों मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं और अपनी अपनी वीडियो को ऑन कर लें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर इन द मीटिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेशनल एंथम वेरी सून, सो इट विल बी ऑन द स्क्रीन। तो सभी बच्चे, आप जानते हो ना, नेशनल एंथम हमारे लिए सब कुछ है। तो उसके सम्मान में आप जहां पर भी हो वहां खड़े हो जाना। अभी तुरंत आपको आईआईटी बॉम्बे से रत्नेश मिश्रा जी प्ले करेंगे। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नेशनल एंथम। ठीक है बच्चों? यस यस, रत्नेश जी यू कैन स्टार्ट। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना तव शुभ नामे जागे, तव आशीष मांगे, गाते तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय। साउंड बंद है। वीडियो में महिला थोड़ा जाता है, हाथ हिला रही है तो पकड़े। Hello. Sir. Sir. Good morning, 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 sir. Okay, so आप जो input and आप जो भी मैसेज है तो आपको जो है वो आप मैसेज करिए। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. 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 Okay. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Just a minute. We'll start. रवि जी। यस, वो जोश जो है ना, मुझे पता है कि आपको रत्नेश मिश्रा जी को देखे तो आपका जोश बढ़ गया है, इसलिए आप अपना माइक बंद करो और मैसेज बॉक्स में डालो। आपने देखा वो आईआईटी बॉम्बे के टी शर्ट पहने हुए हैं, तो आपका जोश एक्साइटमेंट हो गया कि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट से मिल पा रहे हैं, कोरोना क्राइसिस है, घर के बाहर नहीं जा पा रहे फिल्म। तो बच्चों आप बीच में मत करो। श्रिया छेत्री, हेलो श्रिया छेत्री, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, you start the welcome speech without any delay. On the video and start the welcome speech. On the video. Okay, sir. Can I start? Yes, start it. Fix the camera in right way. Fix the camera in right way. Fix the camera in right way. Okay, good. Chalo, continue. Yes, start. Hello and a charming good morning to one and all present here. Myself, Shriya Chetri, student coordinator of Igniting Young Minds from Manipur. It's my great pleasure to welcome one and all present here and thank you to each one of you for being there with us today. I would like to extend a warm welcome to our Mr. Swapnanil Telukdar sir, Mr. Ratnesh Mishra sir, Mr. Sangeet Kumar sir, along with Sir Mr. Ravi Shankar Kumar sir. As we all know that Igniting Young Minds is a platform to promote space and satellite education for every young mind.
that is for the entire student community from many. Yes. Yes, Riya, speak on the mic. It involves a group of people with several years' experience of education, in ranging from people of education ministry, various school principals, and young talented spaces enthusiasts, igniting young minds, perform workshop lectures on space and satellite for schools with distinguished speakers from multiple IITs, ISRO, NASA scientists, and many such space experts. And also, I welcome our dear students for a setup to make this event a remarkable one. And I hope this workshop based on satellite technology will help you to influence your skill and knowledge. Thank you. Yes, Riya, thank you so much for your nice speech. And I now request आज के जो जिसकी इंतजार में आप इतने देर से बैठे हुए थे कि रत्नेश जी कब आने वाले हैं, तो रत्नेश जी PSLV C35 का वीडियो होगा तो प्ले कर दीजिएगा। तो आप सभी इंतजार जिनका कर रहे थे वो आपके सामने है। अभी वो कुछ देर में आप लोग को एड्रेस करेंगे और बताएंगे किस तरह से एक आप सैटेलाइट को बना सकते हो। This Anuj Singh, one student is there. He is disturbing the meeting. I have removed you once, Anuj Singh. This is the second warning to you. If you are going to do the disturbance in the meeting, I am going to block you from the today workshop. Understood? Anuj Singh, I am just seeing your some naughtiness going on right now in the meeting. Okay, yes, Ratnesh ji, continue the video. Yes. तो ये एक PSLV का वीडियो है जिसमें आपको याद है कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, 104 जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट। एंड आप ये जनरली टीवी पे देखते हैं कि किस तरह से ये लॉन्च करते हैं। 7, 6, यस, तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 और देखो किस तरह से रॉकेट एयर में जाता है। आप देखो किस तरह से जा रहा है। सबसे ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है उसमें सैटेलाइट है। वहां पर था प्रथम, जिसको रत्नेश मिश्रा ने बनाया था, वहां पर था प्रथम। टॉप में देखो, टॉप में था प्रथम। वो सैटेलाइट आपको दिख रही है। नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू रत्नेश मिश्रा जी टू कंटिन्यू द क्वेश्चन। यस यस रत्नेश मिश्रा जी, प्लीज कंटिन्यू द वर्कशॉप। ओके बच्चों, तो आपको मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा उनके बारे में। रत्नेश मिश्रा जी प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ प्रथम सैटेलाइट टीम ऑफ IIT बॉम्बे। प्रथम सैटेलाइट 2016 में श्रीहरिकोटा से PSLV C35 से लॉन्च किया गया था। वो आपके साथ स्क्रीन पर है। मुझे लगता है आप सभी का जोश बहुत ज्यादा हाई हो गया है। वो मैसेज बॉक्स में दिखेगा थोड़ी देर में। तो बच्चों दिल थाम के रखो, बहुत कुछ होने वाला है। और तो ऐसे इंसान है कि आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। बच्चों के प्रति उनको बहुत प्यार है। यस रत्नेश मिश्रा जी, कंटिन्यू। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रवि जी, एंड थैंक यू ऑल द बच्चे जो इस पे ज्वाइन किए। एंड स्पेशली यूपी में हम पिछले वर्कशॉप जो किए थे उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे, बहुत अच्छा। और हम ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है जिसके थ्रू हर स्कूल के बच्चों को हम स्पेस, सैटेलाइट और साइंस से रिलेटेड चीज़ों को बता रहे हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा जस्ट थोड़ी देर पहले लॉन्च का वीडियो, तो ये जो वीडियो है वो जनरली हम टीवी पर देखा करते थे कि जब मैं आपकी एज का था तो मैं वो टीवी पर देखता था दूरदर्शन पे कि किस तरह से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, किस तरह से चीज़ें जाती हैं और स्पेस। तब कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि एक दिन वो वीडियो का पार्ट बन के मैं आपको वो चीज़ें दिखा पाऊंगा एंड वो वीडियो दिखाऊंगा। तो यस, इस तरह से एक स्टार्ट की थी। और उसी स्टार्ट के लिए मैं आप सभी को मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो आप लोग अनम्यूट मत करिएगा, आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करिए। ओके, कुछ भी मतलब, या फिर मैं बहुत सारे बच्चों का वीडियो देख पा रहा हूँ तो आप हाथ रेस करिएगा अगर यस है तो। ठीक है, तो आप सभी अभी क्लास 1 से 6 के बीच के बच्चे होंगे। तो एंड उनके साथ बैठे हुए सारे पेरेंट्स एंड उन सब के लिए ये क्वेश्चन है कि जब आपने कभी आसमान छूने के सपने देखे कि आई विल टच द स्काई,
यस और नो और क्या कि वन डे आई टच द स्काई. ओके ओके ओके. Yes, sir. Yes, मैसेज करो. माइक ऑन मत करो. ओके. माइक ऑन मत करो. दूसरा क्वेश्चन. बच्चों माइक ऑन मत करो. सभी बच्चे म्यूट मोड में रहो. मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करो, नहीं तो पूरा मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा. बॉक्स में मैं सारे मैसेज देख सकता हूँ सबके, तो बहुत सारे यस डेफिनेटली. दूसरा क्वेश्चन, क्या आप सभी ने अभी अपने बचपन में या अभी दुनिया घूमने के सपने देखे हैं कि आई विल रोम अराउंड द होल वर्ल्ड? ओके. Yes, sir. माइक ऑन मत करो बच्चों. माइक ऑन मत करो. मैसेज बॉक्स में डालो. Yes, मैसेज sir. बॉक्स में डालो. मैसेज बॉक्स में डालो. राइट. Don't on the mic. ये दोनों जो Yes, sir. ऑलमोस्ट सबके यस आ गए हैं. तो ये दोनों चीजें, ये जो दो सपने हैं जो आप सभी अपने बचपन में देखे हुए होंगे या आपके साथ बैठे हुए आपके पेरेंट्स या यहाँ पर प्रेजेंट सारे टीचर्स वो सपने देखे होंगे. तो ये जो दो चीज है, ये पता नहीं मैंने पूरा किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया, प्रथम एक स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो ये दोनों सपने पूरे किया. किस तरह से कि ये अर्थ के रिवॉल्यूशन कर रहा है हर 90 मिनट में. जब तक हम बातें करेंगे थोड़ा सा, शायद वो आधा चक्कर भी अर्थ का काट चुका हो. तो ये इस तरह से वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ का चक्कर काट रहा है एंड वो पूरी दुनिया घूम रहा है. दूसरी चीज, हमने जो आसमान छूने की बात की थी, तो जो सैटेलाइट है वो अभी आप लोग को पता होगा कहाँ पर है, स्पेस में. स्पेस जो है वो स्काई से भी और ऊपर है. तो ये जो वो सपना है आसमान छूने का, वो तो बल्कि प्रथम स्पेस को छू रहा है. तो इस तरह से ये जो दो चीजें हैं जिसको हम कहते हैं, इसलिए प्रथम को एक सपनों की जर्नी कहा जाता है. तो हम वी यूज टू कॉल दिस एज अ जर्नी ऑफ ड्रीम. एंड नॉट जस्ट मी, या मेरे सपने नहीं, ये सारे इनसे जुड़े लोग, सारी टीम के लोग, आप सभी के सपने उससे लिंक्ड है. तो यस, इसलिए ये जर्नी स्टार्ट होती है प्रथम की इस तरह से. तो आपको मैं कुछ पिक्चर्स या फोटोज दिखाऊंगा इस सैटेलाइट के, जो जस्ट एक सेकंड. रवि जी बताइएगा जब आपको स्क्रीन दिखे तो. Yes. I'll tell you. Excuse me, sir. Don't talk in the middle. Who is talking in the middle will be removed from the meeting. Don't talk in the middle. रवि जी स्क्रीन Yes. आ रहा है? Okay. Yes, Ratnesh ji, continue. Yes, दिख रहा. No, sir, not showing. अभी ओके. So what is that? Yes, sir. Clear. तो जिस बच्चे मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा. मैं लास्ट वार्निंग बोल रहा हूँ. अगर माइक ऑन किए तो सभी को मीटिंग बाहर कर दो. सभी को बाहर कर दूंगा. ठीक है, कोई माइक ऑन नहीं करेगा. पूरे को मीटिंग से बाहर कर दूंगा. You should listen to very carefully. The last warning to all of you. I remove everyone from the meeting right now. Nobody should the mic. Yes, रत्नेश जी कंटिन्यू कीजिए. विपिन श्रीवास्तव. विपिन प्लीज शेयर मत करो स्क्रीन. Doing too much of nonsense. देखो बच्चों, मैं यहाँ पर ही बंद मीटिंग को कुछ कर दूंगा. कोई वर्कशॉप नहीं होगा. लास्ट वार्निंग दे आप लोगों को. वर्क नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ. नीतीश दी, बहुत सारे बच्चे, मेरे साइंटिस्ट को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं मीटिंग यहीं पर क्लोज करने वाला हूँ. ये लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो no more warning. तो Yes, continue. तो सभी को Yes. अभी स्क्रीन दिख रहा होगा. एंड आपस में स्क्रीन यहाँ पर बीच में शेयर न करिए ताकि डिस्टरबेंस ना रहे. और जो ये चीजों के बारे में सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो बच्चे से देखें. जो भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखेगा वो मैसेज बॉक्स में डालेगा.
वो मैसेज बॉक्स डालेगा, कोई आवाज नहीं सुनाई दी मैसेज बॉक्स में डालेगा। अगर किसी ने भी बीच में स्क्रीन ऑन किया या वो किया तो 2 से 3 बार वार्निंग दूंगा, फिर मीटिंग में बंद कर दूंगा, कोई वर्कशॉप नहीं होगा। लास्ट वार्निंग में दे रहा हूँ तुम लोगों को। यस रत्नेश जी, कंटिन्यू कीजिए। तो हमने इस तरह से बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया, मालदीव में भी हमने ये वर्कशॉप किए हैं। तो यस, इसलिए चलो इस पे स्टार्ट करते हैं कि ये जो जर्नी है उसमें आप सभी स्पेस के बारे में आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप ये सारी चीजें गूगल कर सकते हैं या और कहीं से भी जान सकते हैं। बट हम ये चीज इस तरह से लिंक करना चाहते हैं कि आपके आसपास होने वाली हर चीज सैटेलाइट से लिंक। सैटेलाइट सुनने में वो इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड सैटेलाइट, बट इट इज एवरीथिंग अराउंड यू। तो हेलो, यस, सो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा अभी, मुझे आई कैन सी द स्क्रीन, आपके साइड से नेटवर्क इशू होगा, तो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस एंड वी कैन शेयर द पिक्चर विथ यू ऑल। ओके, तो ये प्रथम का सैटेलाइट मॉडल है, फाइनल सैटेलाइट मॉडल, जो कि में स्पेस पे गया। नहीं हो सकता है। Sir, what is this? Wait. I will check all the student who is talking continuously. I am going to remove one by one. Okay. Let me see. One person is on, mic is on. Rasmi Verma, close the mic. Rasmi Verma, close the mic. This is the most disturbing meeting we have ever hosted. All the students are doing like, you should not supposed to do like this in the middle of the meeting. Yes. Now I can see people are telling it is visible. Okay. तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये है लॉन्च के टाइम की वीडियो, जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ प्रथम का, बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने बनाया। एंड ये लॉन्च हुआ 26 सितंबर 2016 को। आपको मैं उसके लॉन्च का एक वीडियो भी शो करूंगा, जिसमें आप फील कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया सैटेलाइट वहां पर रखा गया एंड वो स्पेस पे लॉन्च हुआ। तो ये वो एक सिंपल, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सारे टीम एंड उससे जुड़े सारे लोगों ने की। एक सिंपल क्वेश्चन के साथ कि ये सैटेलाइट हम क्यों नहीं बना सकते। तो जैसे कि यूपी के आपके स्कूल के बच्चे एंड आप सभी में से कोई एक ऐसा सोच सकता है विथ टाइम या इस वर्कशॉप के बाद कि मैं ये सैटेलाइट क्यों ना बनाऊं। ऐसा ही एक स्कूल के बच्चों ने भी एक सैटेलाइट बनाई थी जिसका नाम था कलाम सेट। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग को आपस में सोचना है, पूछना है कि हम क्यों नहीं बना सकते वो चीजें। तो ये वो है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट की चीजें हैं एंड जनरली हम कुछ डिफिकल्ट चीजों को बोलते हैं ना कि ये क्या रॉकेट साइंस है। तो जैसे आप सभी बच्चे कुछ साइंस प्रोजेक्ट करते होंगे या कुछ चीजें बनाते होंगे, तो चलिए जैसे आपके घर पे आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, या फिर आपका लैपटॉप है या टेबल चेयर कुछ है। ओके, तो इसमें से अगर कुछ भी चीजें आपकी मोबाइल से खराब होती हैं तो आप क्या करते हैं। अच्छा, पहली बात तो आप मोबाइल कैसे लाते हैं। आपको मोबाइल या तो कोई कोरियर वाला दे के जाता है या आप दुकान में जाके खरीद लेते हैं, या तो उसी तरह जैसे मोबाइल का कुछ पार्ट खराब हुआ तो आप रिपेयर सेंटर में। नितेश प्लीज डोंट म्यूट। There's the cheat. Vandana Singh, I am seeing all of you. Your naughtiness, you are going to be removed now. Okay, you are going to be removed. I have removed you from the meeting also. Ravi Now ji, that is, what was the name? Nitesh ji? Nitesh Dixit. I will remove Nitesh also. I will remove Nitesh also right now. I'm just checking his name. Where is he? Yes, he will be removed now. Yes, he is now removed. Okay. So 2 person. I have removed 2 person right now. I'll remove. Keep on removing people. Okay. Yes. Okay. Continue. यस, तो जैसे कि आपके घर पर अगर कुछ टेबल चेयर या कुछ लैपटॉप खराब होता है तो आप मोबाइल सेंटर जाते हैं या सर्विस सेंटर जाते हैं या किसी को बुला लेते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में अगर सैटेलाइट कुछ खराब हो जाए या उसका कोई स्क्रू निकल जाए तो आप क्या करेंगे।
इसरो को कॉल करेंगे, हे इसरो हेल्पलाइन सेंटर प्लीज सेंड एन एस्ट्रोनॉट टू करेक्ट माय सैटेलाइट, तो डेफिनेटली नॉट, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह से सैटेलाइट में ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है एंड जिसके अराउंड कि उसमें कुछ भी आपके पास दूसरा चांस नहीं है, आपके पास कुछ भी चीजें उसमें से निकल के अगर खराब हो गई तो वो वंस फेल्ड इज फेल्ड। ओके, तो इसीलिए वो चीजें इतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि जब वो अर्थ पे है तो आप उस पे सारे तरह के टेस्ट सब कुछ करते हैं ताकि वो स्पेस में जाके गलत ना हो, राइट। तो इसीलिए जब हमने स्टार्ट किया था ये सारी चीजें, तो हम भी आपकी तरह इसके बारे में नहीं जानते थे कि क्या होता है सैटेलाइट, क्या होता है इसरो साइंटिस्ट क्या होते हैं, राइट। मतलब उन वो तो आपको जनरली साइंटिस्ट मतलब ऐसा लगता होगा कि आइंस्टाइन जैसे लोग जो बहुत बड़े बड़े बाल एंड विद दैट माइंड, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आज के टाइम पे अब आप देख सकते हैं कि लाइक आई एम टॉकिंग विथ यू एज दिस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो इस तरह से और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आगे उन्होंने अपना काम किया है, योगदान दिया है। तो इसलिए ये चीजें हमने धीरे धीरे सीखी कि किस तरह से वहां पर जाना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से सैटेलाइट बनाना है। और ये पूरी जर्नी, ये जो जर्नी है ये एक दिन की नहीं है, ये पिछले एक हफ्ते की नहीं है, ये एक महीने की नहीं है, न कि ये एक साल की जर्नी है। ये जर्नी है पूरी 8 सालों की, 8 लॉन्ग ईयर्स फ्रॉम 2008 से लेके 2016 तक। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में इस पे काम स्टार्ट किया, 4 साल मैंने अपने काम किया। तो ये जो जर्नी है, ऐसा नहीं कि अच्छा आपका जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई किया एंड कल हो गया। तो ये जो कंटिन्यूअस एफर्ट है आपको जो जरूरी होता है, वो चीजों के लिए के थ्रू ही आप इस तरह की चीजें अचीव कर सकते हैं सैटेलाइट की फील्ड में। तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर जहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ पर सैटेलाइट रूम में बैठ के हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, और ये रूटीन हर दिन का था जब हम वहाँ काम करते थे कॉलेज में। और ये सब वॉलेंटरीली चीजें थी कि जिससे मतलब आप मन से करते हैं, आपको इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, ग्रेड नहीं मिल रहे, पॉइंट नहीं मिल रहे, राइट। तो ये सारी चीजें वॉलेंटरली जो है विथ एक सपना कि मतलब वो दिन जिस दिन सैटेलाइट का जो रॉकेट, जो पीएसएलवी रॉकेट होगा उसके टॉप पे आपका सैटेलाइट रखा हुआ होगा, तो वो चीज के लिए, वो एडवेंचर के लिए, वो फील के लिए ये चीजें की गई। आप सभी जानते हैं कि आज के दुनिया में हर चीज सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल है। जब हम इस पे देखेंगे, जैसे अभी, अच्छा अभी मान लीजिए मैं आपसे आपको लेक्चर दे रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये कैसे पॉसिबल? सैटेलाइट के थ्रू, राइट। तो मेरा डेटा आपको वहां पहुंच रहा है आपके पास सैटेलाइट के थ्रू। आप कुछ भी मोबाइल में जीपीएस चलाते हैं, वो क्या है? सैटेलाइट के थ्रू है, राइट। आप टीवी देखते हैं, वो किसके थ्रू है? सैटेलाइट डेटा के थ्रू है। तो ये जो सैटेलाइट है आज की दुनिया में हर चीज आप धीरे धीरे लिंक की जा सकती है सैटेलाइट की। तो इसीलिए हम जनरली सोचते हैं कि सैटेलाइट हमारे आम जनता के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए क्यों जरूरी। तो इसका मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे 60-70 साल के साइंटिस्ट से मिल चुका हूँ जिनका कहना है कि मैंने जो क्लास 10th तक पढ़ाई की वो मुझे जिंदगी भर याद है। जरूरी नहीं हो सकता मेरे लिए कॉलेज की चीज पता हो या क्या नहीं हो, लेकिन ये जो टाइम है आपका, इस टाइम पे अगर आप सैटेलाइट या स्पेस से रिलेटेड कुछ भी चीजें जान पाएंगे तो ये आपके लिए जिंदगी भर रहेगा कि ये, हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा था या स्पेस में कुछ ऐसा होता है। जो स्पेस है, तो स्पेस, अच्छा स्पेस जनरली आप देखते हैं तो क्या दिखता होगा? कोई एक काला अंधेरा या कुछ ऐसी, या सन। तो जो स्पेस है मुझे कैसा दिखता है, वो एक ड्राइंग बुक की तरह दिखता है कि आप उसमें चाहे जो कर सकते हैं। आप, स्पेस एक ड्राइंग बुक है, जो आप चाहे तो उसमें कलर भर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ नया खोज सकते हैं। अच्छा आप सिर्फ अंधेरों पे ही फोकस करोगे तो क्या पता आपके नाम पे कोई ब्लैक होल निकल आए, राइट, या आप कोई नया ब्लैक होल खोज लें। अगर आप सिर्फ सूरज पे ही रिसर्च करेंगे तो क्या पता कोई नया सूरज या नया सौरमंडल आप खोज सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आप आपने देखा होगा, स्वदेश मूवी देखा होगा जिसमें वो तारों पर देखता है कि किस तरह से। तो आप चाहे तो आप अगर तारों पे रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे नए नए तारों का कॉन्स्टिलेशन या नए तारे खोज सकते हैं, राइट। तो इस तरह से
स्पेस एक पूरी ड्राइंग बुक है जो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यस, तो ये सारी चीजें जो है, जो मैंने आपको कहा कि स्पेस डजंट गिव यू अ सेकंड चांस। One satellite, one sun also named Nemesis. हाँ बेटा, तो आप मैसेज पे भेजो एंड फिर बाद में कुछ भी अगर क्वेश्चन आंसर होगा तो वो भी करेंगे, एंड आपकी तरफ से कोई डेटा होगा तो वो भी सुनेंगे। ओके Okay, sir. ओके। तो ये जो है, ये वो एक्चुअली पर्सन है जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रथम का, सप्तऋषि बंदोपाध्याय, जो अभी नासा में काम कर रहे हैं। नासा में जेट प्रोपल्जन लैबोरेटरी है, वहां पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथ वर्कशॉप में स्वप्निल जी भी जुड़े हैं, वो भी नासा में काम कर चुके हैं, तो वो आपको और डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से चीजें होती हैं वहाँ, क्या है, क्या क्यूरियोसिटी है, स्पेस की फील्ड में इंटरेस्ट है। तो यस, ये वो बहुत सारा, जो मैंने कहा कि 8 साल की जर्नी जो है, तो उसमें मैं काफी लकी हूँ कि मतलब ऑन द राइट मोस्ट यंगेस्ट ऑफ ऑल, जिसके टेन्योर में, मतलब जिसके प्रेजेंस में सैटेलाइट का लॉन्च हुआ, एंड मैंने खुद वो सैटेलाइट जाके उस रॉकेट पे रखा था। तो वो फील जो है, आप समझ सकते हैं कि आपका बनाया हुआ चीज वहां पर रखा जा रहा है जो स्पेस में जाएगा। और मैं कुछ पेरेंट्स जो हैं या टीचर्स हैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों को बाद में कभी 20 साल बाद भी कह सकता हूँ, हाँ स्पेस पे एक चीज है जिसपे मैंने काम किया है एंड जो भी भेजी हुई है, राइट। तो ये वो ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर है पीएसएलवी की श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आप सब लोग जानते होंगे कि वहां से पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च होता है वहां से, इंडिया के सारे रॉकेट वहां से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये वो वहां की पिक्चर है। तो ये हमारा पहला स्टेप था टुवर्ड स्पेस। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा इसका लॉन्च का, जस्ट। Okay, sir. बोल रहा हूँ ना, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। तो आप सभी को अभी एक लॉन्च का वीडियो है जो एक्चुअली प्रथम का सैटेलाइट लॉन्च है। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं रवि जी? यस यस, हाँ हाँ, सब दिख रहा, सब दिख रहा। From IIT Bombay and IIT Bombay satellite है। PES University Bangalore are from Clear. India. Sir, The main objective हाँ, of voice Pratham clear is to estimate the आएगा total electron लॉन्च count TEC with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Have a feel of the launch. तो ये काउंटडाउन जो होता है जिसमें वो पूरा टीवी में आप देखते हैं कि किस तरह से रॉकेट लॉन्च होता है। तो ये अभी वो इग्निशन स्टार्ट हुआ एंड फिर ये लॉन्च का टाइम, वो पूरा प्रक्षेपण अब देख पा रहे हो किस तरह से वो बिल्कुल स्टार्ट हुआ रॉकेट आकाश की ओर उठता हुआ PSLV टॉप और जोरदार रखा We जाता will hear confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed ये वो just 10 scientist seconds है जो later, announce कर the separation of है। PISAT satellite built by the students of PES University तो ये अभी Bangalore. अनाउंस करेंगे कि सैटेलाइट जी हाँ, इजेक्ट हुआ वैसे हुआ। कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालय की छोटा, जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग। तो ये वो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे इसरो के डायरेक्टर्स हैं, के शिवन जी हैं। तो ये जो पर्सन है वो अनाउंस करते हैं कि प्रथम सेपरेटेड, प्रथम सेपरेटेड का मतलब होता है कि जो रॉकेट है जिसमें सैटेलाइट रखा गया था, वो अभी सैटेलाइट अब रॉकेट से निकल के स्पेस में चला गया। तो अब वो वहां पर वो कंटिन्यूअस अर्थ के चक्कर लगाएगा एंड उसका जो भी फंक्शन है वो काम करेगा, राइट। तो यस, क्या हाउ इज द जोश फॉर दिस आफ्टर दिस वीडियो? तो ऐसा कुछ आप लोग भी सोच सकते हैं कि मैं खुद का ऐसा चीज बनाऊंगा जो इस रॉकेट में जाएगा, जो स्पेस में जाएगा, राइट। कोई भी बच्चा मैसेज बॉक्स में डालेगा, मैसेज बॉक्स में बोलेगा नहीं, मैसेज बॉक्स में डालेगा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। यस यस, सो रवि जी आप आगे बताइए। एंड यस यस, देखिए रते, देखो बच्चों, मैं आप लोग से फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, आप लोग मीटिंग में ज्वाइन किए हो, अच्छे से अटेंड करो, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं खत्म होने वाली है।
रत्नेश मिश्रा जी 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सैटेलाइट बनाने का सोचोगे तो वो इंसान आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपको सैटेलाइट आपके हाथ से बनवा के लॉन्च भी करवा देंगे। और आपका क्या है कि आप मीटिंग में पहले साइलेंट तो रहो, आप लोग लगातार बातें कर रहे हो, फिर वो मीटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही ना। तो रवि जी, समझा करो। आप सभी बच्चों में से सेलेक्टेड बच्चों को हम इसरो के विजिट भी कराएंगे, जहां पर आप एक्चुअली सैटेलाइट यस यस देख पाएंगे। वहां पर जो भी साइंटिस्ट काम कर चुके हैं उनसे आप मिल पाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर कलाम जो है, तो उनकी जो सोच थी इस फील्ड में, कि वो आपको पता ही है कि स्पेस और सैटेलाइट और साइंस की फील्ड के महानायक हैं, राइट। तो उनके जो भी सपने हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उनका आपने सपना में हर बार सुना होगा कि वो हमेशा एजुकेशन, शिक्षा की चीज में, एंड यूथ जो है, जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फोकस रखते हैं। तो इसीलिए इग्नाइटिंग यंग माइंड भी आप सभी को उन तीनों चीजों को जोड़ रहा है, एजुकेशन, यूथ एंड इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट। तो यस, यस। इसीलिए तो बच्चों डॉक्टर कलाम, वी आर गोइंग अहेड, एंड आप सभी को इसरो की विजिट एंड बहुत सारी और ऐसी चीजें इसके माध्यम से मिलेगी। तो आप यस सभी के सारे क्वेश्चन हैं, हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों हाँ, देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये वर्कशॉप यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। आप सभी का जब कोरोना खत्म होगा तो हम आपको ट्रिप अरेंज करेंगे इसरो का। इसरो में जाना कोई साधारण बात नहीं है। वहां पर वही लोग जाते हैं जो डिजर्व करते हैं अपनी जिंदगी में। आपको वो ट्रिप फ्री में दिया जाएगा आपके स्कूल की तरफ से, हम अरेंज करेंगे ट्रिप को। और आप में से कोई अगर सैटेलाइट बिल्ड करना चाहेगा तो अपने पास इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट है, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे और हमारे पास साइंटिस्ट है जो कि आज मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। तो आपसे अनुरोध ये है कि आप वर्कशॉप को अच्छे से सुनो, उससे फायदा उठाओ, बाद में हमसे कांटेक्ट बनाओ और बाद में भी आपको हेल्प किया जाएगा। और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि आपके स्कूल के जो अथॉरिटी यहाँ पर जुड़े हुए प्रिंसिपल या टीचर लोग, वो आपके लिए ट्रिप अरेंज करेंगे और ट्रिप आपके स्कूल ऑर्गेनाइज करेगी, हम उसको इसरो में लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको कुछ पूछना है रत्नेश जी से, तो आप मैसेज बॉक्स में डालो और वो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, so आप put the question in the message box if you have some questions. Anybody who want to ask any questions, you put the question in the message box. Yes, if anybody want to, देखो अभी बच्चों आपके साथ स्वप्निल जी भी जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हो। स्वप्निल जी वेलकम टू यू। और रत्नेश जी से जिन्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लीजिए, जिनको भी पूछना है। तो बच्चों का एक ही क्वेश्चन है रत्नेश जी, सर आई वांट टू विजिट इसरो, एक ही क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। Sir, how can we launch the satellite? Sir, हाँ, राइट, मैं बताता हूँ। हाँ, माइक ऑन करना नहीं है बच्चों, मैसेज बॉक्स में लिखो। आपके मम्मी पापा को बोलो मैसेज बॉक्स में लिखने के लिए, माइक ऑन मत करो बच्चों, कई बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ओके, तो आप सभी जो भी इसरो की विजिट चाहते हैं वो तो हम डेफिनेटली कराएंगे। उसके लिए आपको नए नए चीजें इन फील्ड से, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में बहुत सारे इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हो, जैसे कि सैटेलाइट का मॉडल बनाना या फिर रॉकेट बनाना, वाटर रॉकेट करना, राइट। तो ये सारी चीज़ों में पार्ट लीजिए एंड रवि जी आपको और डिटेल में बताएंगे किस तरह से आप इस पे पार्ट ले सकते हो, एंड फिर उसमें से सेलेक्टेड लोग को हम इसरो ले जा सकते हैं। तो वो डेफिनेटली आप सभी का वो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। हाँ, एंड किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, तो आप सभी एक बार बस स्टार्ट करिए एंड दिमाग में ठानिए कि हाँ मुझे बनाना है। हम है यहाँ पर प्रेजेंट आप सभी को उसके थ्रू उस प्रोसेस से ले जाने के लिए, जिसमें आप सैटेलाइट बनाएंगे, उसके बारे में बिगड़ेगा, फिर बनाएंगे, चीजें करेंगे, उसके बाद सैटेलाइट वहाँ इसरो के सामने आपका सैटेलाइट प्रेजेंट किया जाएगा। वो अगर चाहें तो वो पूरे को लॉन्च भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोसेस में धीरे धीरे बताएंगे। बट हाँ, आपको पहला चीज है कि यस मुझे बनाना है, तो वो एक ठानना है, वो टीम चाहिए आपको, राइट। तो यस स्वप्निल, यही क्वेश्चन था रत्नेश जी। ये क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है, वो आपके लिए है, एकदम आपको दिल छू देगा वो क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वालिटी टू बी अ साइंटिस्ट? तो बस बी योरसेल्फ, मतलब जो भी आप हैं बस वैसे ही रहिए। आप साइंटिस्ट का टैग आपके पास आगे पीछे लग जाएगा। तो इट शुड बी नेचुरल एंड इट विल कम नेचुरली।
सारी चीजें। बस हाँ, इन चीजों से रिलेटेड क्यूरियोसिटी रखिए हर फील्ड में, हर चीज में। So yes, Swapnil ji, very nice to connect you here, and I'm रत्नेश so जी, ये glad. क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग है। थैंक यू। ये Yes. क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग है, तो स्वप्निल जी से आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल। रॉकेट जब छूटता है श्रीहरिकोटा से, तो श्रीहरिकोटा को क्या नहीं, क्यों नहीं होता? श्रीहरिकोटा को क्या नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, रॉकेट अच्छा वहां अच्छा छूटता है। तो कह रहा है बच्चा अच्छा कि दिवाली में हम छोड़ते हैं तो घर में आग लग जाती है, कुछ होता है, और रॉकेट छूटता है तो कुछ भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो मैं आपको एक चीज Sir, बताऊंगा I कि want जब to launch the rocket. सुपर बस बेटा सुपर माइक बंद करो, डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में पोस्ट करो, हम सभी आंसर करेंगे। माइक मत ऑन करो, मैं सबसे बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है? बाकी आप तो कुछ भी ये करो। ऐसे बच्चों का ग्रुप है, क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। तो रॉकेट, जब एक चीज आपको बताऊंगा कि जब श्रीहरिकोटा से भी लॉन्च होता है, तो जब लॉन्च होता है उसके 2 किलोमीटर तक की प्रेजेंस के हर इंसान को वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहां से 10 किलोमीटर, जो आप देखते हैं ना कि आपने वीडियो में देखा कि साइंटिस्ट जहाँ बैठते हैं, जहाँ से वो देखते हैं स्क्रीन पे, जहाँ से वो अनाउंस करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो वहां से 10 किलोमीटर दूर होते हैं जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है। तो इसीलिए वो चीजें पूरे सेफ्टी और सारी चीजें रखी जाती हैं, एंड इसीलिए वो उतनी पावर के साथ ऊपर स्पेस तक जा पाता है, राइट? ओके, यस यस स्वप्निल, रत्नेश जी, स्वप्निल जी को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। yes यस yes Swapnil ji, very Yes. nice, and so glad to get connected with you. And I heard a lot from Ravi ji about this and your interest and expertise in the field of space. So yes, so thank you so much and welcome to Igniting Young Mind workshop, and all over to you for creating this curiosity and interest, adventure to these young minds. So yes, over to you. Thank you so much. यस रत्नेश जी, थैंक यू सो मच। तो रत्नेश जी बच्चों, आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट और है तो हमें आप पर्सनल मैसेज करो, मैं नंबर पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, वो बताएंगे। सी यस स्वप्निल जी, प्लीज No, sir. टेक द चार्ज ऑफ द मीटिंग। स्वप्निल जी। Okay. Okay. Thank you. Am I audible? यस यस यस, नो प्रॉब्लम। यस Yeah. Yeah. Okay. यस स्वप्निल जी। Okay. So I'll present the screen now. ओके ओके। सो बच्चों देखो, मैं स्वप्निल जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दूंगा। स्वप्निल जी एक ऐसे इंसान है जिनको भारत के सबसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जी एपीजे अब्दुल कलाम से भी सम्मान मिला है, वो फोटो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने नासा के लिए काफी सारे काम किए हैं। नॉट ओनली फॉर नासा, इन्होंने कई सारे दूसरे देश में जाके, नॉट ओनली अमेरिका, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सारी फोटो जिनकी है कि मैं भी देखता हूँ तो मेरा दिन पूरा खत्म हो जाता है। हर देश में इन्होंने गए हैं, काफी सारे वेबिनार कंडक्ट किए हैं, काफी सारे फिजिकली वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, और आज हमारे टीम के एक बहुत बड़े सदस्य हैं। हमारी टीम में जो भी साइंटिस्ट हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किए हैं। अभी रत्नेश मिश्रा जी को जो आप देख रहे हो, उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट टीम का को हैंडल किया है। प्रथम एक सैटेलाइट बना तो घर में जैसे मालिक होता है, घर में पिताजी आपके पेरेंट्स सबसे बड़े होते हैं, तो रत्नेश जी पेरेंट्स की तरह उस सैटेलाइट को उन्होंने बड़ा किया है। उसी तरह से स्वप्निल जी हैं जिनके अचीवमेंट्स भी काफी सारे हैं, इनको भारत सरकार से कई सम्मान भी मिल चुका है। उसी तरह से यश सांघवी जी हैं जो आज जुड़ नहीं सके हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी जी से गोल्ड मेडल मिल चुका है। मानवी धवन जी एक ऐसी हमारे पास गर्ल साइंटिस्ट हैं कि जो इसरो तो छोड़ो, डीआरडीओ में भी उन्होंने भी धमाका कर दिया है, काफी सारे काम किए डीआरडीओ के लिए, वो भी आज जुड़ नहीं पाई हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आप ये सभी लोग आपके स्कूल में आएंगे और सभी से मिलेंगे, वो समय भी जल्दी आने वाला है। ठीक है बच्चों, यस स्वप्निल जी, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। Okay, sure. Yes. Now, Swapnil, can you hear me? Presentation. Yes, yes. Some, I think, Yeah. Is it you are facing some network issue?
Yes, there is slight network issue. Okay, fine. Yes. Now you can see the बच्चों, स्वप्निल जी अभी प्रेजेंटेशन अपना स्क्रीन पर ला रहे हैं, तो आप लोग कोई भी स्क्रीन प्रेजेंट मत करना. तो yes, how much time was taken to make the Pratham satellite? This is the question that I will answer to all of you. It was 8 year of journey. Okay बच्चों, जिनका क्वेश्चन था कि how much time was taken to make the Pratham satellite is 8 year of journey. Yes, Swapnil. You can share the screen now. Raviji, is it displaying? Yeah, it's displaying. Swapnil Tadulkar is presenting. Yes. सर कौन है बच्चा? कौन बात कर रहा है बीच में? Who is this talking in the middle? So Swapnil ji, so we can see the presentation with your name coming. It's not the presentation of PDF. Okay, sure. Please give some idea for making satellite. Yes, Ratnesh ji will answer you this question. जब तक वो प्रेजेंटेशन चालू नहीं होगा, रत्नेश जी बताएंगे आपको कि किस तरह से आप एक सैटेलाइट बना सकते हो. Please tell how to make a satellite. Ratnesh ji, this is the question for you. Now another question has come. How you feel when the satellite has launched? अब रत्नेश जी बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है. This Kapil Chaudhary is a very naughty boy. I think he has to be removed. Very naughty boy. Curious. Kapil Chaudhary. I'm checking that person. Kapil Chaudhary. Yes. I'll remove him now. He has been removed. Yes. Ratnesh ji, continue कीजिए. How does satellite work in space? This is another question. So you have to mix all the question and give one answer. So yes, so Swapnil जी आप बताइएगा जब आपका सेट हो जाए, तब तक I'll just answer these questions. Okay, sure. Yeah. So सबसे पहली चीज कैसा फील होता है? तो आप सभी तो यस वो बयां करना ही मुश्किल है. उसकी बहुत सारी, मैं आपको पूरी प्रथम की एक मूवी की जर्नी बताऊंगा, किस तरह से क्लाइमैक्स सीन एंड किस तरह से चीजें रही प्रोजेक्ट की, किस तरह से सैटेलाइट बनाया जाता है और लॉन्च किया जाता है. तो यस, ये 8 साल की जो जर्नी थी उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सैटेलाइट में अलग अलग. जैसा आपने देखा रॉकेट में 4 स्टेजेस होते हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग पूरा बनाया जाता है. उसमें फ्यूल होता है, जैसे आपकी गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल होता है तो उस तरह से फ्यूल होता है. जिस तरह से आपके पास आँख होता है, कान होता है सेंसर की तरह, तो उस तरह से हर सैटेलाइट में सेंसर होते हैं, राइट, जो ये पता करते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ या मैं कहाँ पर हूँ, राइट. जैसे आपके पास मोबाइल में जीपीएस होता है, तो उस तरह से सैटेलाइट में एक जीपीएस होता है जो ये बताता है कि सैटेलाइट कहाँ पर है अभी, राइट. तो अब जैसे आपके पास हाथ पैर होते हैं परफॉर्म एक्शन करने के लिए, तो उस तरह से सैटेलाइट के हाथ पैर होते हैं जो वो उसको चलाने में मदद करते हैं. जिस तरह से आप ऑक्सीजन या एनर्जी, मतलब आप खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, उस तरह से सैटेलाइट जो है वो सनलाइट लेता है एज ए एनर्जी, राइट, सोलर पैनल से. तो ये सारी चीजें हैं जो जैसा एक इंसान काम कर सकता है, बिल्कुल वैसा ही बहुत सारी और टेक्नोलॉजी के थ्रू सैटेलाइट चीजें बनती हैं. तो उसमें हर तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं. Yes. Swapnil ji, I think you are facing a huge network problem, right? So do one thing now. You just present the photo. You send the photos to presentation to Ratnesh ji. He will present for you. Ratnesh ji, आप रत्नेश जी को भेज दीजिए वो फोटोज, वो आपको प्रेजेंट कर देंगे वहाँ से. I think you are facing some network issue from there. Yes. आप मुझे मेल कर दीजिए. आप रत्नेश जी को भेज सकते हैं. आप क्या कीजिए उसका. और रवि जी, can I send you in your number, Ravi ji? Yeah, send me because I will or else you directly send to Ratnesh ji. I'll pass you the number on WhatsApp. I'll pass my number here. Okay. Okay. चलो भाई, चलो साइंटिस्ट का नंबर सब लोग वो कर लो, सेव कर लो. परेशान मत करना, जो जरूरी हो वही क्वेश्चन पूछना, ठीक है. क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यार स्वप्निल जी, आपको नंबर मिल गया रत्नेश जी का? आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कर देता. हाँ, या प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां से हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो अब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि सर हाउ मेनी स्पीड देन सैटेलाइट क्रॉस आवर एटमॉस्फेयर, स्पीड कितना होता है? तो जो सैटेलाइट है वो रॉकेट के थ्रू जाता है,
अब सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी स्पीड में आपको बताऊंगा, तो वो स्पीड होती है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। 7 से 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब मैं अगर अभी नासिक से आपके घर आऊंगा तो शायद मैं 2 या 3 मिनट में आपके घर पहुंच जाऊंगा, अगर मैं प्रथम होता तो, या मैं सैटेलाइट होता तो इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट, आई चेक द क्वेश्चन। ओके, हाउ मच मटेरियल इन सैटेलाइट? सैटेलाइट में कितना मटेरियल है? हाँ, तो जो सैटेलाइट, हमारा सैटेलाइट है वो 10 kg का सैटेलाइट है, 10 किलो का। बहुत सारे इसरो के बड़े बड़े सैटेलाइट्स होते हैं जो 300, 400, 500 किलो तक के सैटेलाइट्स होते हैं। एंड इवन जो रॉकेट होते हैं वो तो टन्स में होते हैं, लाइक 100 टन, तो उस तरह से होते हैं। Yes, next question is how many communication satellites are in Earth orbit? How many communication satellites are in Earth orbit? हाँ, सो कम्युनिकेशन के बहुत सारे हैं। उस कम्युनिकेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं लोग, कि कुछ जो हमारे सैटेलाइट मोबाइल कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ होते हैं जो रिमोट सेंसिंग की तरह यूज करते हैं, कुछ होते हैं जैसे कि आप बहुत सारे अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन, कुछ हो सकता है सिर्फ डिफेंस के डेटा भेज रहे होंगे, राइट। जो सैटेलाइट फोन यूज करते हैं आर्मी में, डिफेंस में, राइट, तो वो सारी चीजें वो डायरेक्ट उसके थ्रू होती हैं। तो ऐसे अलग अलग कम्युनिकेशन हैं एंड सैटेलाइट्स हैं जिनका ये फंक्शन। Yes. What work your satellite is doing? What Yes. Pratham is doing? Yes. Just a minute, Ravi ji. I got the pictures, so I'll just download all. Yeah, okay, fine. एक क्वेश्चन है रत्नेश जी आपके लिए कि हाउ। अच्छा सर। यस, प्रथम की बात मैं बच्चों को बताता हूँ। प्रथम का काम क्या है कि एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर्स होते हैं। उसमें एक लेयर है जिसका नाम है आयनोस्फेयर। प्रथम का काम है उस आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। तो इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग कर रहा है कौन? प्रथम। प्लीज सेंड मी सम आइडिया फॉर मेकिंग सैटेलाइट। उसके लिए आपको 8-9 साल बिताने पड़ेंगे। 8-9 साल अगर आप बिताने को तैयार हो तो यू कैन बिल्ड योर ओन सैटेलाइट। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है उसके। नहीं तो आपके स्कूल में हम सैटेलाइट के कुछ किट भेजेंगे, ठीक है, विथ टाइम। तो पहले आप स्टार्ट करिए उस किट से कि हम किस तरह से वो छोटी छोटी चीजें जोड़ के बना सकते हैं। फिर उसका अगला स्टेप होगा कि हम किस तरह से उसका 3D मॉडल बना सकते हैं। फिर उसका अगला स्टेप होगा कि हम उसमें कुछ साइंस का एक्सपेरिमेंट डाल सकते हैं कि कुछ सेंस करेगा, कुछ अलार्म बजेगा, कुछ चीजें होंगे, राइट। फिर उसका अगला स्टेप हो सकता है कि कुछ सिग्नल भेजेगा, जैसे सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप है कि आप पहले सिर्फ किट की तरह करिए, फिर 3D मॉडल बनाइए, फिर उसके बाद उसमें कुछ सेंसर डालिए, अलार्म डालिए, साइंस प्रोजेक्ट डालिए, फिर उसमें आगे क्या करेंगे, सैटेलाइट की तरह सिग्नल भेजिए। जैसा आप सभी ने वो राजी मूवी देखी होगी, तो उसमें वो डॉट डैश करके वो सिग्नल भेजते हैं एक दूसरे को, राइट। तो उस तरह से सैटेलाइट भेजते, क्योंकि सैटेलाइट तो हमारी तरह हिंदी और इंग्लिश में बात नहीं करता है, राइट। तो इसलिए वो कोड जो होता है तो वो करते हैं। तो ये एक एक स्टेप है जो हम फॉलो करेंगे, तो आप लोग उससे आप सैटेलाइट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। देखो बच्चों, आपका जो स्कूल है सेंट जेवियर्स में आप पढ़ते हो, वहां पर सबसे पहले ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जाएगा यूनाइटेड यंग मैन्स के द्वारा। जब ग्राउंड स्टेशन बनेगा तो उससे क्या होता है कि आपको सिग्नल आने लगेंगे सैटेलाइट के साउंड सुनाई देने पड़ेंगे। जब आप डेली सुबह और शाम में सैटेलाइट के साउंड सुनोगे तो आपको खुद अपने आप को इंस्पायर होगा कि भाई मुझे भी एक सैटेलाइट बनानी चाहिए, मेरे सैटेलाइट की। रवि जी आप म्यूट पे हैं। यस तो यस, please tell me to make the satellite. Okay, same question you all are repeating again and again, so it won't be answer. Yes, हाँ रत्नेश जी उनका प्रेजेंटेशन चालू कर दीजिए, स्वप्निल जी का। एक मिनट ना, उनका डेटा आया नहीं मेरे पास अभी तक, कोई और फोटो। स्वप्निल जी। हाँ स्वप्निल जी, वो नेटवर्क थोड़ा आसाम में है ना, आसाम नॉर्थ ईस्ट में, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। Sir, I can ask you something. Message. Ask. Yes. Swapnil ji, can you hear me? Swapnil ji. Hello, Swapnil ji, can you hear me? I think वो Sir, I can ask you anything. I'm sorry. Yes. Sir, I can ask. So everyone, please mute and Sir, you have seen all your questions. Just message. Sir, how much
How much fuel in a rocket, sir? So 300, 400 kgs and more. Sir, how much fuel in a rocket? I want to ask a question. Same question you all are asking. Don't ask the same question. Don't ask the same question every time. Same question every student is asking. Sir, I Every want to If you ask. want to ask a question, Sir, you want to ask a question, put in the message box. yes, Sir, I Swapnil want ji. to ask a question. Don't speak too much. Sir, what is the height of Pratham? So everyone Sir, please message. Yes. sir, you have seen the Earth? अरे बच्चों, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग माइक ऑन मत करो। आप लोग सबसे ज्यादा मैंने अभी तक 30 वर्कशॉप कंडक्ट किए, इतना डिस्टर्बिंग वर्कशॉप कभी नहीं हुआ। मैं आप लोग को बार बार मना कर रहा हूँ कि आप लोग वर्कशॉप में बात मत करो। ये पूरा वर्कशॉप मीटिंग के तरह हो रहा है, इंटरनेट से हो रहा है। मोस्ट डिस्टर्बिंग वर्कशॉप आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, सो डोंट टॉक इन द मिडिल। यस स्वप्निल जी, आपने भेजा क्या? नाउ यू कैन शेयर। हाँ, yes, I यस स्वप्निल जी स्टार्ट कीजिए। I think it's on the way. अच्छा, So before, हाँ, ठीक है, चलो। आप बात कीजिए रतन स्वप्निल जी, बात कीजिए। Before it reaches, हाँ, I think it's on the way. हाँ, ठीक है। So thank you so much, Ravi ji. यस बोलते रहिए। हाँ स्वप्निल जी बोलिए। Hello. Yes. Thank you, Ravi ji, for the opportunity. और रत्नी जी ने भी बहुत अच्छी तरह से सब बच्चों को ये आइडिया दिया है कि हाउ मच इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने काम किया अपने प्रथम सैटेलाइट के ऊपर, और कितना कैसा एक उनका जर्नी रहा अभी तक। मेरा भी जर्नी लगभग सेम ही है। काम का जो आउटपुट था या फिर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व था वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज जो रहे रतिन के भी और जो क्यूरियोसिटी लेवल मेरे से, वो सब मेरे हिसाब से दोनों के सेम ही रहे थे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। और ये फिर मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट कोर्सेज भी किया है, काउंसलिंग साइड से भी मैंने कोर्सेज किए हैं। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी मेरे दिल के इतने करीब क्यों है, वो उसका आंसर मैं पहले देना चाहता हूँ। बात यह है कि जब हम कोई भी फील्ड देखते हैं या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट देखते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका एक दायरा होता है, लाइक हाउ मच नॉलेज इज कंटेनिंग। आप अगर इंग्लिश देखते हैं, लिटरेचर कितना रहता है, हिस्ट्री अगर आप पढ़ते तो कितना आपका नॉलेज या फिर आपका इनपुट रहता है। लेकिन आप अगर स्पेस देखते हैं तो स्पेस में क्या है, देयर इज इनफिनिट और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज। स्वप्निल जी एक बार अनम्यूट करिए। या हाँ, infinite amount of, oh yes, yeah. So there is infinite amount of, so हम जब स्पेस के ऊपर बात करते हैं तो एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलता है कि एलियंस के ऊपर। मैंने पहले एक दूसरे बच्चों के साथ ये किया था, और एक बहुत जनरल क्वेश्चन सबके माइंड में ये था कि एलियंस है कि नहीं। तो अभी जो जितने भी बच्चे हमसे अभी इस वर्कशॉप के साथ जुड़े हैं, उनके माइंड में भी यही कॉमन क्वेश्चन सबके माइंड में होगा कि एलियंस का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो हम जहां भी वर्कशॉप करते हैं तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन मेरे ऊपर आता है कि एलियंस है। तो मेरे हिसाब से अगर पर्सनल व्यू पॉइंट से अगर हम देखने जाए तो एलियंस तो होते हैं डेफिनेटली। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो विदाउट एनी स्लाइड, विदाउट एनी फोटोग्राफ, हम अभी आपको प्रूफ दे सकते हैं। आपको थोड़ा रिसर्च बाद में करना होगा उसको टू वेरीफाई, लेकिन आई गिव ए स्मॉल आइडिया। एक टाइम था बहुत साल पहले, अराउंड 5-6,000 मे बी 10,000 ईयर्स एगो। उस टाइम पे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सब एक पार्ट के जियोग्राफिकली उनके पार्ट एक थे, और साउथ अमेरिका, यूएस के अंदर उनका थोड़ा अलग था। फिजिकल बाउंड्रीज वर डिफरेंट। उस टाइम पे यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते थे। उस टाइम
या उस टाइम पे जो केव पेंटिंग्स था, हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन या फिर आप माया सिविलाइजेशन जो इजिप्ट में है, इंटरेस्टिंगली पेंटिंग्स में अगर आप देखने जाए तो हंटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट था अर्ली मैन के टाइम पे वहां पे, क्योंकि उस टाइम पे तो प्रोसेस ये लेस चिप्स, अंकल चिप्स, मैगी, फ्रूटी ये सब नहीं था। उस टाइम पे रॉ फ्लैश मीट वाज अवेलेबल। उस टाइम पे अगर आप केव पेंटिंग्स को देखते हैं और उसको अगर हम आज के टाइम पे अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो हंटिंग वेपन्स है वो सिमिलर आपको मिलेंगे। दे वर मेड आउट ऑफ स्टोन्स या फिर स्टिक्स जो नेचुरली अवेलेबल है। शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट था उस टाइम पे ह्यूमन जो हंटिंग आपका जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स है पट्टे थे या फिर Sir, मे I बी can स्किन ऑफ एनिमल्स ask यूज you करते थे anything. उस टाइम पे, वो दोनों कॉमन है। I'll answer you after the presentation is over. Okay. You can put your question in the chat box. आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम एक वन बाय वन आई आंसर एवरीथिंग। तो उस टाइम पे क्या था, एलियंस का एग्जिस्टेंस हमको यही इन्हीं से मालूम पड़ता है कि जो ड्राइंग्स बनाए गए थे बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और हंटिंग वेपन्स, वो कुछ इस प्रकार के थे कि उनका जो एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था लेकिन बहुत थिन था, और जो सिर था वो अंडे के जैसा था। शेप ऑफ द हेड वाज लाइक एन एग। लेकिन ये तो चलो कोई इमेजिनेशन से एक जगह पे बना दिया, चलो मे बी वी बायोलॉजिकली या किसी ने इमेजिन करके ये बनाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आता है कि जितना भी केव पेंटिंग्स आप देखे हैं जहाँ पे भी एलियंस का या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स या फिर ईटी बोलते हैं हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, तो आपने आपको जब पेंटिंग में जो सिमिलरिटीज नजर आएंगी वो दोज आर मैचिंग अराउंड 90%। जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, जो हाइट है वो हमसे ज्यादा है, हेड का शेप है वो सेम है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन लाइक ही है। दैट इज सेम फॉर बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, दैट इज सेम फॉर इवन द इजिप्शियन माया सिविलाइजेशन। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले, हजारों सालों पहले, जहाँ पे देयर वाज नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहां उस टाइम पे जहाज नहीं बने थे, उस टाइम पे बोट्स बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं था। उस टाइम पे जो केव पेंटिंग्स बनाए गए थे दैट वे लेटर स्टडीड थ्रू कार्बन डेटिंग प्रोसेस। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में ये होता है कि we can find out how old that particular structure is, how old the plant is old, even dinosaurs की जो skeleton मिलते हैं, we can find out how old it is। Exact तो नहीं मिलता है लेकिन एक आपका टाइम फ्रेम मिलता है कि उस बनाया गया। तो केव पेंटिंग में भी ये हमको we have studied across कि जो केव पेंटिंग्स इजिप्ट में थे वो केव पेंटिंग साउथ अफ्रीका में भी था, वो केव पेंटिंग इंडियन पेनिनसुला में भी प्रेजेंट पाए गए थे। और उस टाइम पे कम्युनिकेशन बीच में कुछ भी मुमकिन हो नहीं पाया था। तो दैट गिव्स अस द कंक्लूजन, ये हमें यही बताता है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एलियंस एग्जिस्टिंग। सेकंड, आई वुड लाइक टू गिव शेयर ए पर्सनल टेस्टिमनी। हम जब नासा में काम किए थे उस टाइम पे मैंने अपने डायरेक्टर और या टीम लीडर्स मैंने ये पूछा था क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था एलियंस या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर जो प्रोजेक्ट रहते हैं सब में। तो उनको मैंने तो उनको मैंने ये पूछा था कि सर व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आपको क्या लगता है एलियंस है? तो उन्होंने मुझे यही आंसर दिया था कि अगर आप एक प्लेट, इफ यू टेक ए प्लेट, उसमें अगर आप सैंड डाल दो एंड इफ यू सी द अमाउंट ऑफ स्पेस, उस प्लेट में अगर आप देखें तो अर्थ का जो अमाउंट ऑफ स्पेस जो ये ऑक्युपाई कर रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दैट मींस भी अर्थ या फिर हम लोग का जो सोलर सिस्टम है सोलर सिस्टम जो है उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है इन द होल गैलेक्सी, दैट इज वेरी हेलो या। तो हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है एग्जिस्टेंस इन दैट
पर्टिकुलर प्लेट वो बहुत कम है, दैट मीन्स इट्स वेरी नेग्लिजिबल. सो देयर excuse, I'll just come in a minute, okay? Yes. Yeah. तो आप सभी के सारे क्वेश्चंस स्वप्निल जी आंसर करेंगे अभी, जो पूछ रहे ना एलियंस से. Okay, so sorry for the inconvenience. Yeah, just put आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप प्रेजेंट वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? एंड देन आई विल आंसर. सबके क्वेश्चन हम आंसर करेंगे. एलियंस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे मालूम है, और आई विल गिव यू एविडेंस. आपको और स्टडी करना है उसके बारे में भी विल डिस्कस इन द कमिंग इन फ्यू मिनट्स मोर टू गो. तो अगर हम देखते वो या एज आई वाज मेंशनिंग कि नासा के जो डायरेक्टर थे उनको हमने पूछा था कि एलियंस का एग्जिस्टेंस हाउ कैन यू वेरीफाई, आपको व्हाट इज योर ओपिनियन. तो उन्होंने बोला अगर हम देखते हैं कि हम लोग का सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस है, इट्स नॉट इवन 1%, वो 1% भी नहीं होगा. एंड हबल टेलीस्कोप जो करंटली अवेलेबल है उसके हम देखते हैं बाहर में, इफ वी लुक बियॉन्ड आवर ओन सोलर सिस्टम, तो वी कैन ओनली गो टू एन एक्सटेंट. मतलब अगर 100% ऑफ द गैलेक्सी या यूनिवर्स प्रेजेंट है, उसमें से हम लोग ने सिर्फ 1% वी हैव एक्सप्लोर्ड, हम लोग ने एक्सप्लोर किया है. तो ऐसा जैसे 110% पॉसिबिलिटी कि जो 99% हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस इज वेरी मच पॉसिबल. क्योंकि हम लोग सिर्फ मून के सरफेस में ही पहुंचे अभी तक. वी हैव नॉट रीच्ड द मून सरफेस ऑफ द मार्स. और स्टडीज क्यूरियोसिटी, अगर इफ यू हैव हर्ड अबाउट द रोवर क्यूरियोसिटी, तो वो ऑलरेडी मार्स के चक्कर लगा रहे हैं ऑन द सरफेस. वहां से अगर आप डेटा स्टडी करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि द सरफेस वाज वन इन हैबिटेबल. मतलब उसका जो सतह है, उसका जो सरफेस है, वो वेरी मच ह्यूमन या फिर आपका ये ह्यूमन एनवायरनमेंट एक टाइम पे था. तो इट गिव्स अस एन आइडिया दैट हमारा जो सोलर सिस्टम, खुद के सोलर सिस्टम है, वहां पे जो 8 प्लैनेट्स है, वहां पे भी मून या फिर मार्स में देयर वाज एटमॉस्फेयर. और अगर हम लोग आर्टिफिशियली अगर करने जाए तो प्रोबेबली देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ वी सर्वाइविंग. मतलब हम वहां पे रह पाएंगे या फिर हम लोग वहां पे जाके अपना जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ा पाएंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चन है. आई वुड लाइक टू टेक 2-3 क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी सेशन हम लोग का. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप लोग अगर स्टडी करते हैं, इफ यू स्टडी द एलियंस बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा एविडेंसेस मिलेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम लोग सबने सुना है कि जो इजिप्ट में पिरामिड्स है, उसका जो स्ट्रक्चर ढांचा है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पिरामिड, वो बहुत यूनिक है. दिखने में इट माइट बी ए स्ट्रक्चर, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इसलिए यूनिक है क्योंकि जिस टाइम पे वो बना था, उस टाइम पे ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि दे वर एबल टू ड्रैग द स्टोन्स. अगर आप उसका जो पत्थर है, द इजिप्ट पिरामिड्स, दे आर मेड ऑफ स्टोन्स. वो स्टोन्स का अगर आप वेट साइज देखेंगे तो वो आज की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरीज है, जो वेट लिफ्टिंग मशीनरीज है, उससे संभव हो गया. लेकिन उस टाइम पे जहाँ पे मशीनरीज नहीं थे, उस टाइम पे जहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीन्स, तो उस टाइम पे कैसे पॉसिबल हुआ कि दे हैव ए परफेक्ट स्ट्रक्चर, मेड ए परफेक्ट स्ट्रक्चर आउट ऑफ दोस. और अगर आपको और डीप में अगर इसके ऊपर जानना है, तो
आप गूगल में जाके यूट्यूब में जाकर एंशिएंट एलियंस एक सीरीज है, दिस इज सीरीज ऑफ शोज टेस्टिंग्स या फिर जो रिसर्च करते हैं या फिर जो रिसर्च करते हैं, तो एविडेंस है सब एक साथ एक सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड और सारी कन्विंसिंग एविडेंस एलियंस है। लेकिन ठीक है, वी अंडरस्टूड कि एलियंस हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन द ओनली वे टू मतलब हम होंगे कि वो लाने को। Sir, is there any scientific proof for alien? डेफिनेटली ये जब वो जो क्वेश्चन है हम आपको समझाएंगे कि एविडेंस है नहीं और कैसे Proof for alien होते? Sir, या डेफिनेटली अगर आप Nobody will talk in the middle. Nobody will talk in the middle. जिसमें कोई ने आप चैट बॉक्स में डाल सब कर देंगे और जो चाहिए वो आपको दे देंगे लास्ट में कि है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम सिक्योरिटी आप लोग अभी बच्चे हैं, अभी आप लोग बिलो ग्रेड 10 स्टैंडर्ड्स की मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ये प्रेजेंट है। अगर आपको एलियंस के ऊपर अगर आपको फ्रॉम योर ओन साइड अगर आपको ये श्योरिटी मतलब आपको चाहिए, देन यू हैव टू एक्चुअली गो एंड स्टडी दोज एरियाज। उसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एलियंस ऐसा एक चीज है कि उसका होना और नहीं होना 50-50 चांसेस में पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग के अंदर अभी वी हैव अराउंड 96 पार्टिसिपेंट्स यहाँ है, हम लोग के बीच में एक दो एलियन हो सकता है, आप में से कोई एलियन हो सकता है, क्योंकि एलियंस जिन्हें हमने स्टडी किया, एलियंस का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे का है, हम लोग के बीच में भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है, दूसरा के लिए उनके एलियंस हो सकते हैं, कि हम जब एलियंस का वर्ड एलियन हम लोग ने जब कॉइन किया था, तो एलियन मींस दैट इज अननोन टू अस। अगर कोई चीज हमें हमारे समझ में नहीं आता है, if something is not understood by us, then we address this as aliens, unknown beings. और 100% ऑफ द यूनिवर्स अगर हमें एक्सप्लोर करना है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग। स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है, एक विषय है जिसके थ्रू ही हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। और रत्न जी को भी एक दो क्वेश्चन आए थे कि हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट, हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो इसके ऊपर हम मेरा जो व्यू पॉइंट है वो भी आई वुड लाइक टू शेयर। बात यह है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपका जो फर्स्ट बेसिक पॉइंट होगा, देयर आर 3 मेन की पॉइंट्स। एक पॉइंट तो होगा आपका जो क्लियरिटी ऑफ विजन कि आपको बनना ही है, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, आपको एस्ट्रोनॉट या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन आपको जाना ही है। सेकंड पॉइंट कि आपका जो क्यूरियोसिटी लेवल है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, वो हाई होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो फिजिक है, आपके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पेस डिमांड्स या फिर स्पेस में अगर आप जाते हैं तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो ना के बराबर है, और वहां पे उस एटमॉस्फेयर में अगर आप काम करना चाहते हैं, देन आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई चाहिए होता है। क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो फुलफिल नहीं कर पाते, बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रेन्ड इन एन ओलंपिक स्टाइल मैनर। इसका मतलब ये है कि जो ओलंपियंस दौड़ते हैं, जो ओलंपियंस स्प्रिंटिंग करते हैं, जो ओलंपियंस वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके उसी लेवल पे या फिर उस इंटेंस के साथ ही एक एस्ट्रोनॉट या फिर कोई भी एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लोर स्पेस या फिर स्पेस में जाना चाहता है, उनका जो लाइक
उनका जो ट्रेनिंग होता है वो सेम ट्रेनिंग ही होता है। उनको 0G या फिर 0 ग्रेविटेशन में आपको वो एटमॉस्फेयर में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और मेरा जो प्रोजेक्ट था नासा में वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि अपोलो 16, अपोलो 17, इवन अपोलो 15, जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनके क्रू गए थे, उनको बहुत परेशानी हुआ था कि वंस दे हैव लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, उनको जो ऑक्सीजन टाइम उनके पास टैंक रहता है वो सिर्फ 2.5 आवर्स के लिए वैलिड होता है। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशन ऑन द मून का जो में जो ग्रेविटी वो बहुत कम है, 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, तो वहां पे जो ट्रैवल पॉइंट है, पॉइंट भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड। तो अपोलो 17 और 16 में नासा ने किया दे हैव सेंट सम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कि ऐसा व्हीकल्स या फिर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स उन्होंने इजाद किया था। और उस टाइम पे फोर्ड जनरल मोटर्स भी उनके साथ काम किया था। उन्होंने मिलके, इवन बोइंग कंपनी उनके साथ था, ये 2-3 कंपनी मिलके स्पेस के लिए उनके सैटेलाइट में एक स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन रोवर उनको भेजे थे। और उसके थ्रू उन्होंने मून का जो सरफेस है वहां पे अराउंड 11 to 12 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। कि सैटेलाइट उनका जो रोवर मतलब मेन लैंडर लैंड किया था, उस लैंडर से उन्होंने अराउंड 11 to 12 किलोमीटर वो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल रोवर लेके उन्होंने ट्रेवल किया था, एक राउंड लगाया था टू कलेक्ट सैंपल्स। वो सॉइल सैंपल आप बोल सकते हैं, फिर रॉक सैंपल, सॉइल तो वहां पे नहीं होता है, तो वहां पे रॉक सैंपल्स उन्होंने इकट्ठा करके लाया था। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम होता है कि जो वंस यू हैव लैंडेड द मून रोवर अगर आप सरफेस में लैंड करवा देते हो, Sir, your mic is muted. Sir, your voice is not coming. तो आपका जो Yes, sir, battery your होगा sound या is cracking. Sir, your So sound is Mike, cracking. Sanjay Verma. Who is Sanjay Verma? Sanjay Verma. Who is this person? Sanjay Verma. Sanjay Verma, I am going to remove you from the meeting right now. You are doing some naughtiness. Yes, continue कीजिए. Sir, ओके, थैंक यू, Please removed. चलिए तो मुझे कंटिन्यू कीजिए. वो बच्चे को ओके सर, ओके, muted for Veena So, Singh. This Veena Singh. So, I will remove her also. Yeah. Some people are there. They are always disturbing the meeting. ओके, चलो Veena Singh. Yes, she is removed now. कोई बात नहीं। Yeah, we have to remove. Otherwise, we can't control the meeting. ओके, थैंक यू, वंडरफुल। Sorry. Sorry. सो नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो हमने जब मुझे जब वो प्रपोजल आया था कि मुझे एक टीम दिया जाएगा नासा के थ्रू, कि मुझे ऐसा व्हीकल डिजाइन करना होगा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम लोग के जो अभी व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं वो इधर डीजल, सीएनजी, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। लेकिन हम लोग को ऐसा टास्क दिया गया था कि बिलो 100 किलोस कम में अगर हम एक ऐसा डिवाइस बना पाएंगे, ऐसा एक मशीन बना पाएंगे कि कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट उस व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होगा, उसमें डीजल नहीं होगा, उसमें सीएनजी गैस नहीं होगा, उसमें जो पावर होगा वो मैनुअल। जो एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट्स या फिर द वंस हु आर ऑन द मून सरफेस, वही लोग उसको पावर करेंगे। दैट विल बी लाइक ए साइकिल। हम अगर साइकिल करते हैं अच्छे से, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन पावर्ड है कि हम खुद ही उसको चला पाएंगे। तो मेरे टीम में ये टास्क था कि वी टू डिजाइन समथिंग दैट विल एनेबल अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर यूजिंग मैनुअल पावर। और हम लोग की टीम ने ऐसा डिवाइस, एक रोवर हम लोग ने प्रेजेंट किया है, और वो रोवर में देयर आर 2 एस्ट्रोनॉट्स दैट कैन स्टैंड और सिट ऑन द रोवर एंड उसको चला पाते हैं। तो
जो हर्डल्स थे व्हाइल मेकिंग द होल प्रोजेक्ट बहुत थे, क्योंकि हेलो या क्योंकि स्वप्निली हेलो या हाँ, कैन यू हियर मी? यस 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 हाँ, बस क्या कीजिए, इनको बच्चों को शॉर्ट Yes, में ले yes, I लीजिए, can क्यों hear बच्चे you. बहुत मीटिंग डिस्टर्ब कर रहे हैं। शॉर्ट में आप ले लीजिए इनको, और इनको मीटिंग को कुछ 10-15 मिनट में खत्म ओके श्योर श्योर क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, हर चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, Okay. म्यूट कर रहे हैं, कुछ म्यूट कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, ठीक, कोई बात, ओके सर, श्योर श्योर श्योर। सो जो हम लोग का टास्क था वो था कि वी हैव टू डिजाइन समथिंग दैट कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और जो ट्रैवलिंग है वो मैनुअल पावर होगा। और हम लोग ने देखिए पारुल सिंह जो है ना, बहुत बेकार बच्चा है पारुल सिंह, रिमूव करना So, पड़ेगा। इसीलिए कहा ना, हाँ, शॉर्ट में वही। इसको खत्म कर दीजिए, शॉर्ट में आप खत्म कर दीजिए, चलो चलो क्योंकि ये बच्चे बहुत ठीक है, डिस्टर्ब ठीक है, कर रहे हैं। चलो चलो चलो। तो ओके, तो प्रोजेक्ट जो है वो तो इन द कमिंग डेज वी कैन, हम आज तो हम फोटोज वीडियो नहीं शेयर कर पाए, लेकिन आपको अगर वीडियोस या फोटोज देखना है तो मेरा जो नाम है स्वप्निल तलकदर, वो आप गूगल में जाके आप टाइप कर सकते हैं। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका फोटोग्राफ्स वीडियो सब वहाँ पे है। लेकिन बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू कीवर्ड्स। अब अभी बच्चे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल जो है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, वो कैसा होना चाहिए और क्या क्या एलिमेंट्स वहां पे इंक्लूड होने चाहिए, वो मुझे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। एक तो है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी क्या होता है कि काम तो है बहुत सारे, लेके 24 आवर्स से वो 10 साल पहले, 100 साल पहले और नेक्स्ट 100 इयर्स टाइम का सेम ही रहेगा, 24 आवर्स ही रहेंगे। तो 24 आवर्स में आपका टाइम मैनेजमेंट है, वो स्किल बहुत जरूरी है। सेकंड, क्यूरियोसिटी, बिकॉज क्यूरियोसिटी क्योंकि क्यूरियोसिटी हैज नो बाउंड। आप जितना क्यूरियस होंगे उतना ही आपको एक प्रेरणा मिलेगा कि आप और उसको एक्सप्लोर कर पाए। थर्ड पॉइंट है कि आपका नॉलेज बेस वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, जिस फील्ड में जाते हो उसमें आप यू शुड बी द बेस्ट इन द फील्ड। और फोर्थ पॉइंट है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर किसी प्रोजेक्ट में काम करें, उसका आप देखिए कि उसका जो आउटकम या एफिशिएंसी और उसका जो एक इफेक्ट होगा सोसाइटी में, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर उसका एक लार्जर ह्यूमैनिटी स्केल में उसका इफेक्ट होता है कि नहीं, वो आप अपने ध्यान में रखिए। ट्राई टू डू समथिंग गुड। ऐसा काम कीजिए जहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर कमिंग जो भी आपके फॉलोअर्स है, आपके वेल विशर्स है, आपके गुड बुक्स में, दे वुड ट्राई टू सेट यू एज एन एग्जांपल, और आपको एज रोल मॉडल लेके वो इन द लॉन्ग रन जा पाए। और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखा था रिगार्डिंग कोविड-19 वैक्सीन। स्वप्निल जी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल आप सभी इस्तेमाल करते हो, गूगल में जाके डालना है स्वप्निल तादुलकर, उसके बाद आपको इनका पूरा डाटा आ जाएगा और जहां से इनको आप एक्सेस कर सकते हो। केवल डालना गूगल के अंदर स्वप्निल तादुलकर, आपको सब चीज मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आई वुड ढूंढने की जरूरत। सही I have a question. Sir, तो दो क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर बिफोर कंक्लूडिंग। एक क्वेश्चन है कि कोविड-19, no, just type your question. Can you type the question in the chat box? Chat box में type कर where we will send the photo. स्वप्निल जी, मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसको आंसर करें, उसके बाद मीटिंग को बंद करें। ओके, आपको दो क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन पहला ये है कि ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको भी हंसी आएगी। बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कोविड-19 के वैक्सीन बना रहे हैं क्या? सही। वो तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो वो डिपार्टमेंट में पड़ जाता है। मेरा तो स्पेस टेक्नोलॉजी और बिजनेस में है, तो इसलिए अभी तो हम नहीं काम कर रहे। यस सर। देखिए सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए सर। एलियन क्या भूत की तरह दिखते हैं? ये सेकंड क्वेश्चन। नहीं, एलियन हम लोग बीच में, हम भी एलियन हो सकते, मेरे जब भी दिख सकते, कभी सर भी एलियन हो सकते। Sir, where we will send the pic. Where we will send the pic. ओके पीक के 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट। ये नंबर पर भेजो आप लोग, ये नंबर पर भेजो आप लोग।
Sir, there is alien flag real. कह रहा है कि एलियन भूत है और रियल है। सर हम लोगों को व्हाट्सएप पर भेजनी है। एलियंस तो है, एलियंस कहाँ पर तो है। Sir, I have a question. यस आस्क। Yes. Sir, is planet Proxima B isn't real? See, एक देखिए वो एक तो है कि आप ये टेक्स्ट को ये किसी को नोमेनक्लेचर सब है उसका है डेफिनेटली वो है, लेकिन उसका जो एट्रिब्यूट हम ये एपिसोड थ्रू पढ़ रहे हैं के अंदर भी एग्जैक्टली कि लेजियम की लोगों को मालूम कि प्लूटो का सर्विस ऑफ आइस, लेकिन दोस assumption इन द सेंस लाइक हम देखा है लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं कर पार्ट सही है और कुछ पार्ट यस। Sir, your voice is cracking. ओके फाइन। स्वप्निल जी बस छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन होगा ना व्हाट्सएप पर ले लेंगे, ठीक है। चलो Sir, Stella ma'am, can you hear me? Stella ma'am, can you hear me? sir, anyone seen the alien, sir? Leila ma'am, can you hear me? Yeah, yes, sir. Can you keep the photo frames? Keep the photo frames and close. Yes. So very good afternoon, children. Sir, आपने क्या पास से एलियन को देखा है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. आपने एलियन देखा है? एलियन को देखा है? Sir, anyone see the alien, sir? Sir, Yes, ma'am, you are continue. who got Sir, you have seen alien? Sir, you have Leila ma'am, seen continue. No, I have not seen alien. Leila ma'am. Sir, Leila ma'am. Sir, where aliens live? Leila ma'am. Are you there? Leila. Leila ma'am, are you there? Please speak up. Leila ma'am. मीनाक्षी, are you there? मीनाक्षी. एलियन देखे हैं क्या? मीनाक्षी, are you there? Hello. Yes, Leila ma'am. Yes. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Continue. Hello, ma'am. Continue. Ma'am, your mic is mute. Sir, ma'am, mic is muted. Yes. Sir, Leila I ma'am, have can you hear one me? question. Meenakshi Shukla, can you hear me? Meenakshi Shukla. Okay, none of you can hear me. So fine. बच्चों देखो यहाँ पर आपको मैं मीटिंग अभी क्लोज करने वाला हूँ। इसके पास हाँ Leila ma'am, can you hear me? Yes, Leila ma'am. Continue fast. Yes, ma'am. Continue. My dear students of St. Xavier's School, Hardoi. Only you are getting a very good chance, very golden opportunity to interact with the scientists. Somebody have muted your call, ma'am. Sir, ma'am, mic is mute. Sir, ma'am, mic is mute. Sir, ma'am, mic is mute. Okay, बच्चों ठीक है. Sir, I'm ask one question. Your mic is on. Okay, बच्चों Ma'am, Sir, please open मेरा your mic. लास्ट बात यही है. मेरा लास्ट बात यही है बच्चों, मेरा लास्ट बात यही है कि सभी बच्चे एक बार माइक ऑन करो और देखो Leila मैम का कुछ का इशू इसमें उत्तर है क्या? विदुत सर, कैन यू हियर मी? विदुत सर, नहीं आ रही है. सर कैन यू हियर मी? यस Leila मैम. Sir, your voice is not clear. Yes, sir. Meenakshi, can you hear me? Meenakshi.
मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? शी नॉट स्पीकिंग। ओके बच्चों, सभी लोग अपने माइक ऑन करो और एक बार में बोलो भारत माता की जय। 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 अभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ, मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। भारत माता की जय बोलते हो, मीटिंग लेफ्ट हो जाओ बच्चों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। माता की जय। माता की जय। मीटिंग लेफ्ट हो जाओ सभी बच्चे। भारत माता की जय। बच्चों सभी मीटिंग लेफ्ट हो जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। भारत माता की जय। नहीं ओके रहेगा। सर। माता की जय। बाय सर। बच्चों मीटिंग लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू सर। सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाइए विदाउट एनी डिले। लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। Yes, without any delay, leave the meeting. Yes, I think Meenakshi was not able to speak because she was not able to on the mic. Thank No you problem, sir. Meenakshi. Next time you'll get a chance. Don't worry. Sir, where we have to send? क्या चीज बेटा? We are given the link.